سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں بلا شبہ ہم سب جانتے ہیں کہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، لیکن عزم قربانیوں کے باوجود دہشت گردی کا ناسور تاحال چیلنج بنا ہوا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ ہے جی۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک گریٹ گیم ہے، ایک ایسی گیم جس کے اندر ایک سے زیادہ ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے صرف نہیں بلکہ چین کی ترقی سے بھی وہ ناخوش ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ چین جو ہے وہ ترقی کرے اور پاکستان کے جو ایک رم لینڈ ایشیا جس کو کہا جاتا ہے، ایشیا کے بالکل آخر میں آ کے رم لینڈ کے اوپر ہم کھڑے میں ہیں، اس کے اوپر جب بھی ماضی کے اندر کوئی فورسز آئیں تو وہ بذریعہ طاقت آئیں۔ پہلی دفعہ ہے کہ چین کو پاکستان نے ایک بھائی بندی کے اندر، ایک تعلق واسطے کے اندر ہم نے ایک راہداری دی، اور یہی وجہ ہے کہ چین کے صدر جناب شی جن پنگ نے ہمیں آہنی بھائی قرار دیا، یعنی کہ اب ہم آئرن بردرز ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نہ وہ مسلمان ہیں، نہ وہاں ہماری طرح کی شکلیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ کلچر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آنے بندھن کے اندر بندھ چکے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ جہاں ایک پاکستان کے لیے خوشائن بات ہے، وہاں دنیا کے لیے اور طاغوتی قوتوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک چیلنج اور سرد درد ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ایک طرف پاکستان نیوکلیئر ملک ہے، دوسری جانب پاکستان کا محل و وقوع بہت خوبصورت ہے، اور تیسری جانب پاکستان کا جو سمندری راستہ ہے وہ چائنا کی بلو اکانومی کو اور پاکستان کی بلو اکانومی کو ایک نیا جو رتبہ ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے افغانستان کو استعمال کیا گیا، دانستہ طور پر اسلحہ وہاں چھوڑا گیا ایک کثیر تعداد کے اندر جاتی ہوئی سپر پاوروں کی جانب سے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انڈیا نے بھارت کے جو بھارتی اثر و رسوخ تھا وہ افغانستان میں بڑھنا شروع ہو گیا، اور پیسے دے کے انہوں نے افغان نیشنل آرمی کے جو لوگ تھے جو کہ 3,50,000 کے قریب وہاں موجود ہیں ان کو خریدنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ تو ان میں سے ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن زیادہ تر تعداد جو تھی، جو فٹ سولجرز تھے، وہ یہیں رہ گئے۔ بے روزگاری وہاں بڑھ رہی ہے، لاقانونیت وہاں بڑھ چکی ہے، اور اسی وجہ سے دہشت گردوں کی وہ ایک جنت بن چکا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کے اوپر پھر کچھ عرب ممالک ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ گوادر پورٹ کی وجہ سے اور بلوچستان کی بڑھوتی کی وجہ سے کہیں ان کے کاروبار نہ متاثر ہو جائیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ عرب ممالک براہ راست تو نہیں لیکن پیسے کے ذریعے ضرور ایسے عناصر کی پشت پناہی کرتے نظر آتے ہیں۔ تیسری جانب جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ نظریاتی ان کا اختلاف ہے، اور اس میں ریاست اسرائیل جو کہ ایک ناجائز ریاست ہے جس کو پاکستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور نہ کرے گا انشاءاللہ، تو وہ اس کو پاکستان کی جو بڑھوتی ہے اس کو ظاہر ہے وہ ایک نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ اس کا جو اب اثر زیادہ بڑھنا اس لیے شروع ہوا کیونکہ ابھی ہم نے جب دیکھا کہ کیسے گلف کے اندر جب جنگ ہوئی تو بلکہ جو جاری ہے تو آبنائے ہرمز کی افادیت بڑھنا شروع ہو گئی۔ آبنائے ہرمز کا مطلب یہ ہے کہ گوادر پورٹ کی اہمیت مزید اجاگر ہو گئی، اور اگر یہ مزید اجاگر ہوئی تو یہی وجہ ہے کہ اب دہشت گردی کے واقعات میں اچانک سے تیزی آنا اس لیے شروع ہوئی کہ ایک تو آبنائے ہرمز، دوسرا 2025 کی پاکستان کے ہاتھوں بھارت کے جو پھینٹی تھی جو کہ تاریخ ساز اس کو ہم نے شکست دی، وہ ظاہر ہے بھارت اب براہ راست تو نہیں لیکن دہشت گردوں کے ذریعے اپنی پراکسیز کے ذریعے وہ ایسا کارروائی عمل میں لانا چاہتا ہے کہ پاکستان کو وہ کٹ لگانا چاہتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے مختلف جگہوں کے اوپر وہ جسم کو کاٹ کے خون بہانا چاہتا ہے۔ یہ ان کا مقاصد ہے۔ اس کے لیے افواج پاکستان کی ایک حکمت عملی سامنے آئی۔ پہلا انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کو ایک سافٹ سٹیٹ سے ہارڈ سٹیٹ کی طرف لے گئے اور کہا کہ
हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, जिसका अभी आपने देख लिया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम था, ऑपरेशन शाबान था, वो रद्दुल फितना 1, रद्दुल फितना 2 और रद्दुल फितना 3, ये तमाम ऑपरेशन जो हैं वो स्विफ्टली कंडक्ट किए जा रहे हैं। पहले ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ करते थे, लेकिन अब इनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इसके अंदर एविएशन, इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन और इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी और ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है अब्दुल्ला साहब, आपने बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ी आई है इस कुछ अरसे में इन तमाम तर सूरत हाल में, चाहे वो फौजी हिकमत अमली है, चाहे वो सियासी हिकमत अमली है। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से भी आपसे मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन आपके जवाब में जो आपने आगाज़ किया उससे एक सवाल मेरे जहन में आया कि आपने जिस तरह कहा कि चाइना की हुकूमत के साथ पाकिस्तान ने भाई बंदी से उसको एक रास्ते पर वो लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना में एक ताल्लुक है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि शी जिनपिंग की हुकूमत गुज़श्ता कई सालों से चल रही है। अगर आने वाले कुछ सालों में ये हुकूमत तब्दील होती है तो आपके ख़्याल में गवादर पोर्ट या फिर जो शाहराह रेशम है या फिर जो चाइना के पाकिस्तान में इंटरेस्ट हैं, क्या इसमें आप तब्दीली देखेंगे? नहीं, मैं इसमें नामुमकिनात है ये, इस वजह से वैसे कोई अनहोनी हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कैलकुलेशन पे किया जाए तो 90s के अंदर ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे इमर्ज किया था, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से, और फिर वक्त के साथ साथ चीन के अंदर तब्दीलियां भी आई, उनकी सियासी तब्दीलियां भी आई, उनकी मिलिट्री हाई कमांड में भी तब्दीलियां रूनुमा हुई, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनका एक इंटरेस्ट है, एक नेचुरल एलाई है पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान एक मामूली मुल्क नहीं है, पाकिस्तान ने दिफा की फील्ड में, न्यूक्लियर की फील्ड के अंदर और सिफारत की फील्ड के अंदर, स्ट्रेटजी की फील्ड के अंदर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाइना को वही मुकाम हासिल है जो पाकिस्तान के साथ, जो एक वक्त में बरतानिया को हासिल था अमेरिका के साथ और आज भी है। याद रखें कि अटलांटिक चार्टर साइन करने के बाद बरतानिया ने सरेंडर तो कर दिया था एक किस्म की अपनी ताकत को, लेकिन उस टाइम पे बरतानिया जो था न्यूक्लियर नहीं था, बरतानिया एक बढ़ती हुई ताकत नहीं बल्कि एक ढलता हुआ सूरज था। लेकिन पाकिस्तान उसके बरक्स एक जो है वो चढ़ता हुआ सूरज है, जो उसकी आबोताब अब पूरी दुनिया जो है वो देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो वजूहात हैं कि दुश्मन को ये अंदाजा है। अब आप ये देखें कि भारत है या इसराइल, दोनों पिटे हुए खिलाड़ी हैं, एक ईरान के हाथों, एक पाकिस्तान के हाथों, और जब ये दोनों पिट गए तो इन्होंने फादरलैंड और मदरलैंड बन गए। तो जितने भी 0/0 0 ही हुआ करता है, वो कभी भी प्लस साइन में नहीं जाया करता। इसलिए जो चाइना के अंदर अभी फिलहाल पोजीशन है, ये इनकी किसी सदर शी जिनपिंग की एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये किसी मौजूदा हुकूमत की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये रियासत की स्ट्रेटेजी है। और चाइना की जो थिंकिंग है वो ट्राइबल थिंकिंग की तरह होती है, यानी कि वो बहुत ताखीर से धीमे अंदाज में फैसला करते हैं, लेकिन जब वो फैसला करते हैं तो उसके साथ कारबंद रहते हैं। और फिर इसके अंदर उनके इंटरेस्ट भी शामिल हैं, जाहिर है, क्योंकि इससे उनको एक बढ़ोतरी मिल रही है कारोबार के अंदर, तरक्की के अंदर, तामीर के अंदर, मईशत के अंदर और दिफा के अंदर। तो यकीनन एक चाइना बढ़ती हुई सुपर पावर है, और एक ऐसी सुपर पावर जो बनाई जा चुकी है। अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब दौरा किया तो उन्होंने चाइना को एक सुपर पावर तस्लीम किया। तो पाकिस्तान इज राइजिंग टुगेदर विद चाइना, जिसको वो चाइना वाला भी स्लोगन यही है ना कि राइज पीसफुली बट somebody has to pay the price। ये मैं अपने चाइनीज भाइयों से ये कहूंगा कि उनको ये समझना चाहिए कि राइज पीसफुली नाम की कोई चीज नहीं होती। राइज पीसफुली में कहीं ना कहीं कोई खून से कीमत अदा कर रहा है, और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान अदा कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को सिफारती सतह के ऊपर, दिफाई सतह के ऊपर, स्ट्रेटेजिक सतह पर, मुआशी सतह पर इस्तेहकाम देना चाइना की जिम्मेदारी बनती है। और ना सिर्फ चाइना की बल्कि खिताई जितनी भी ताकतें हैं उनको भी ये समझना होगा कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का मतलब उनकी अपनी डिस्टेबलाइजेशन है। और ये बात शायद खित्ते के मुमालिक आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, और इसी वजह से तुर्किया और सऊदी अरब दोनों ने दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का पाकिस्तान से मुआहदा किया, जिसके चर्चे दुनिया के अंदर गूंज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वापस बलूचिस्तान वाले मामले की जानिब आएं तो अब्दुल्ला साहब, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के साथ पुलिस और मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगे लाने का फैसला आपके ख्याल में कितना मौसर साबित हो सकता है, जो कि अब पूरा तय हुआ है कि बलूचिस्तान में जो नई स्ट्रेटजी के तहत अब ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी?
देखिए, जो अभी पिछली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह बता दी गई थी और कहा था कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। और ये भी था हकीकत के 13 साल से नेशनल एक्शन प्लान, जिसके अंदर पुलिस को मजबूत करना, दीगर इदारों को मजबूत करना, उनको फ़ाल करना, उनकी ट्रेनिंग करवाना, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मजबूत करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया, न सूबों की जानिब से न वफाक की जानिब से। जो ओरिजिनल 20 नुकात थे, उसमें से जो 4 नुकात अफवाज पाकिस्तान के ज़ुमरे में आते थे, वो तो आज अपनी जाने दे के उसको साबित कर रहे हैं, उससे वफा कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी नुकात थे, जो कि हुकूमतों के इख्तियार के अंदर थे, जिसके अंदर जुडिशरी को बेहतर बनाना था, उसके अंदर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स थे, उनको फाल बनाना था, ज़्यादा बनाना था, उस पे काम नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि बलूचिस्तान की अगर ख़ास तौर पे बात की जाए, तो वहाँ के आप देखें कि जितने भी ये जो एमएनए हैं, एमपीए हैं, सेनेटर हैं, तकरीबन 100 के करीब इनकी तादाद है। लेकिन बलूचिस्तान पे बात करने के लिए आपको अब्दुल्ला गुल या दीगर लोग मिलते हैं। क्यों? बलूचिस्तान से क्यों नहीं लिए जाते? क्योंकि वहाँ वो हुकूमती जितने भी मुराद हैं, वो तो लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ ज़बान खोलने के लिए या अपने अमली तौर पर कोई कदम करने के लिए वो तैयार नहीं है। ये है लम्हे फिक्रिया, जिसका मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को बहुत बखूबी इल्म है इस बात का। लेकिन यही बात हो रही है कि गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाया जाएगा, आवाम की सहूलियात दी जाएंगी। मेरे ख्याल में बहुत काम भी हुए हैं। सीपैक के तहत बहुत सारी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुए। मौजूदा वजीर आला जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, यूथ को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है ये एक दिन का गुबार तो नहीं है, ये पिछले कई सालों का गुबार है। इसको बैठने में टाइम लगेगा, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, यानी कि सिविल और मिलिट्री दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ सियासी सतह के ऊपर मेरे ख्याल में हम आहंगी होना जरूरी है, क्योंकि जो एक जब पेज के ऊपर होंगे, यानी कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे बयानिए मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए, हमारा एक ही बयानिया होना चाहिए। जैसे आज अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो तमाम का तमाम बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ बहुत सारी आवाजें हैं जो कहती हैं कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं नेशनल लेवल के ऊपर हमारा एक कंसेंसस डेवलप होता? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बलूचिस्तान में इस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि ओवर 2 डजन इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस बात का कि हमारी आईएसआई, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस उनको काउंटर करती है अपने महदूद वसाइल के बावजूद। ये गुलजार इमाम शंबे का वाकया, ये इसी तरीके से जो सरफराज बंगल जई का वाकया, ये तो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के अंदर अगर तारीख लिखी जाए तो मैं आपको बताऊं कि ये शायद सबसे टॉप के ऊपर ये ऑपरेशंस जो हैं वो समझे जाएंगे। तो वो तो मैं मजबूर हूं नहीं बता सकता, लेकिन मकसद यहाँ ये कहने का है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत काम कर रही हैं, लेकिन हमें आवाम की जो सपोर्ट इस टाइम पे चाहिए है, जो लोगों की ज़हन साजी और किरदार साजी करनी है, वो सियासतदानों के दायरा इसमें एक मसला और भी है अब्दुल्ला साहब, इसमें एक मसला और भी है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों का जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब उस इन्फ्लुएंस की वजह से भी कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में हालात की खराबी की बड़ी वजह सामने आती है। तो उस इन्फ्लुएंस को भी फिर कैसे कम किया जाए? देखिए, उस इन्फ्लुएंस को कम करने का एक दो बड़ी बात अहम है। पहली बात यह है कि हमारी ये बड़ी फतह थी सिफारती सतह पे कि जब अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और बरतानिया ने बाकायदा बीएलए और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दिया था। बहुत खुशी की बात थी। लेकिन जब उसको यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान लेके गया तो उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि इस पे हमें मजीद सबूत चाहिए, ताकि पाकिस्तान ये चाहता था कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनके जो ट्रैवलिंग हैं, इनकी जो आज़ादाना घूमना फिरना है या मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हैं जो दहशतगर्दों को बराह रास्त या कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कम से कम उनकी रोकथाम की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि उसके लिए जब अमेरिका कहता है कि मजीद सबूत और शवाहिद चाहिए, सवाल ये पैदा होता है कि जब अमेरिका ने उनको दहशतगर्द करार दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने और बरतानिया ने, तो क्या बगैर सबूत और शवाहिद के करार दिया था? तो ये वो चंद बातें
ऐसे हैं जिनको हमें मेरे ख्याल में गौर करना चाहिए। दूसरा, बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका का छोड़ा गया असला जो कि अफगानिस्तान में $7.1 बिलियन का है, वो एक जाहिर है बहुत बड़ा खतरा बन के उभरा है। और आपने देखा कि एक बड़ी तादाद के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन शाबान के दौरान वो तमाम असला पकड़ा। अब मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, भारत की सैटेलाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं, सैटेलाइट इमेजरी उनको दी जा रही है, बाकायदा कंडक्टेड ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं। जैसे जाफर एक्सप्रेस का वाकया, अभी DGISPR साहब ने भी कहा कि 4 एंगल से कैमरे लगे होते हैं और वीडियो बनाई जा रही है। इसका मतलब है कि एक अगर दहशतगर्द है सिर्फ, तो उसका तो काम, या एक जंगजू है तो उसका तो काम जंग से होना चाहिए। ये जो तमाम शोबदाबाजियां हैं, ये कौन उनको दे रहा है? तो बड़ा वजाहत से हम बिल्कुल, ये बिल्कुल वाज़ेह है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त का।